محنت مشقت کر کے اس نے ایک پرائیویٹ سی نوکری حاصل کی. نوکری حاصل کی تو اس میں صرف یہ تھا کہ اس کی روزی روٹی اس کا کھانا پینا چلتا تھا. تو وہ ایک مثال کے طور پر ایک گاؤں میں اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا. بس وہ دن بھر صبح سویرے اٹھ کے چلا جاتا تھا, دن بھر کام کرتا تھا, رات میں آتا تھا. تو وسائل بہت کم تھے, تھوڑے تھے. تو اپنے سے وہ بیچارہ نہاتا دھوتا صاف کرتا, اس کے بعد اپنے سے روٹی پکاتا اور روٹی پکا کر کے کھاتا اور کھا کر کے سو جاتا. پھر صبح ہوتی, پھر کام میں چلا جاتا, پھر آتا, کھانا بناتا اور کھاتا. یہ اس کی زندگی تھی, چل رہی تھی. لیکن کیا ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کو کیا لگا کہ وہ اپنے رات کی روٹی صرف 4 بناتا تھا. توجہ چاہیے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی بھاشا میں بات کر رہا ہوں, کہیں بہت بڑی بات نہیں بول رہا ہوں جس کو آپ کے اوپر سے بات چلی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 4 روٹی بناتا تھا. ایک دن وہ روٹی بنا کر کے کھانا لگا کر کے جیسے ہی موڑا کے چلے, ہاتھ دھو کر کے بیٹھیں گے, تو اچانک آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 روٹی ہے, 1 روٹی غائب ہے, 1 روٹی غائب ہو گئی. تو اس نے کہا لگتا ہے کہ 3 ہی روٹی بنایا, ہو سکتا بھول ہو گئی ہو. تو اس نے کھانا کھا لیا, کھا کے سو گیا. پھر دوسرے دن کی باری آئی تو دوسرے دن میں اس نے گینا کتنی روٹی بنایا, اور روٹی بنا کے وہ اتنا بیچارہ یہ تھا کہ اس نے قلم سے اپنے ہاتھ میں لکھا 4 روٹی کہ اب بھولیں گے نہیں. وہ پھر گیا, منہ دھویا, اس نے منہ دھونے کے بعد پھر پلٹ کے آیا دسترخوان میں تو دیکھی 1 روٹی غائب. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کا کمزور دماغ کا آدمی ہوتا تو ضرور کہتا کہ وہ ضرور بھوت جنات لگ گیا میرے پیچھے جو میری روٹی کو کھا رہا ہے. وہ تیسرا دن کہا کہ اچھا ہم تیسرے دن چیک کریں گے کیا یہ روٹی کہاں جا رہی ہے. سب نے کہا کہ چیک کریں گے. وہ ہاتھ روٹی لگایا تھا سرفان پر اور ہاتھ دھونے کے لیے آگے بڑھا, بھی پورا نہیں منزل کو پہنچا تھا کہ بیچ راستے میں اس نے پلٹ کے دیکھا کہ روٹی کون دے جاتا ہے. پلٹ کے دیکھا کہ ایک موٹا سا چوہا وہاں پہ آیا, اس نے 1 روٹی منہ میں لی اور لے کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. فوراً چلا گیا, کہا رکو, ٹھہرو. چوہا رک گیا, سوچا کہ آج تو چوری پکڑا گئی ہے میری, آج چوری میری پکڑا گئی ہے. اس نے کہا کہ یہ روز روز جو تم میری روٹی لے جاتا ہے, کھٹتا میں ہوں, محنت میں کرتا ہوں, بازار سے سامان ہم خرید کے لاتے ہیں, تم نواب صاحب کی طرح سے 1 روٹی لے کے چلے جاتے ہیں, تم اپنا دن بھر کا انتظام کر لیتے ہو. کہا بھائی میرے, اللہ نے میرا رزق تیرے یہاں لکھ دیا ہے, اللہ نے میرا رزق تیرے یہاں لکھ دیا ہے. تیرے دسترخوان سے اللہ نے کہا کہ جا تیرا کھانا وہاں ہے تو ہم اپنا کھانا لے جاتے ہیں. کہا کہ تو میرے رزق سے لے جاتا تو میرا رزق کیا, ہم اسی طرح رہیں گے زندگی بھر, بس دن بھر محنت کریں, کھٹیں کھائیں, نہ میری شادی ہوئی ہے, نہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے. کتنا پرانا ہم کرتا پہنے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی تم کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ تم میرا رزق کھانا, میری ہی روٹی کھا لیتا ہے. کہا کہ تمہاری بھی قسمت چمکے گی لیکن ٹائم لگے گا. چوہے نے جب یہ کہا تو کہا کہ کیسے بدلے کہ میری تو چوہا ہو کر کے میرا فیوچر بتلا رہا. کہا کہ ہاں تمہارا فیوچر جو ہے بہت بلند نظر آ رہا ہے, بس تم کو ایک کام ہے, فلانی پہاڑی کے پیچھے بخاری شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں, فلانی پہاڑی کے پیچھے بخاری شاہ بابا رحمۃ اللہ رہتے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس ان کی زیارت کرو گے, اپنا مقصد بیان کرو گے, وہ بابا جو تم سے کہیں گے تمہاری زندگی کی ساری سمسیایں حل ہو جائیں گی, تمہاری زندگی کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی. تو کہا کہ وہ پہاڑی, وہ تو بہت دور ہے, اونچی پہاڑی ہے, برف کی گھاٹی ہے, بہت لمبا سفر ہے, تو 1 ہفتہ لگ جائے گا. کہا کہ ہاں لگ تو جائے گا 1 ہفتہ. کہا کہ ٹھیک ہے ہم چھٹی لے کے جائیں گے. اس نے 10 دن کے بعد جو ہے آفس سے چھٹی لی, اور چھٹی لینے کے بعد وہ شخص اب چلا کہاں, حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے, وہ ان سے ملاقات کرنے کی, اور ان کو جانے کے لیے تقریباً بیچارے کو 1 ہفتہ درکار تھا. ٹھیک نا, 1 ہفتہ درکار تھا. اس کو پیدل جانا تھا, پھر پہاڑی جانا تھا, پھر ندی کراس کرنا تھا, پھر پہاڑی پر جانا. کیا تو اس نے کہا کہ چلو پیدل کا راستہ ہے, کوئی راستہ تو ہے نہیں, چلیں اس کے پاس. وہ چلا وہاں سے, توجہ چاہوں گا, وہ وہاں سے چلا. چلنے کے بعد دن بھر سفر طے کرتے 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 جنگل میں پہنچا. اب جنگل میں تو رات تو سفر کر نہیں سکتا تھا. اب اس کو فکر ہوتی کہ رات کہاں گزاریں گے, اگر جنگل میں گزاریں گے تو جنگلی جانور اس کو کھا جائیں گے. تو ادھر ادھر بیچارہ پریشان ہو رہا تھا. بندہ جب پریشان ہوتا ہے, پریشانی جب بھی آتی ہے تو اسی کے بعد اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. پریشانی کے بعد یہ جو ہندوستان میں آپ کی پریشانی ہے نا, اس پریشانی کا اگر آپ نے مقابلہ کر لیا تو پھر رحمت جاویدانی بھی آپ کو ملنے والی ہے. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا, کہاں کو نہیں ہے, تو پھر آگے بڑھا. دیکھا کہ جنگل میں خوبصورت سی حویلی ہے, ایک خوبصورت سی حویلی ہے. تو اندھیرا ہو رہا تھا, اس نے دستک دیا, دروازہ کھلا, دیکھا ہو رہا تھا. یہ کہا کیا بات ہے, کہا مسافر ہیں.
हमको भूख भी लगी है और रात में आपके हम रहना भी चाहते हैं। अगर आप अपने यहाँ रहने का मेरे लिए इंतज़ाम कर दें और खाने का भी इंतज़ाम कर दें, हम मुसाफिर हैं, तो अल्लाह आपके लिए बहुत कारसाज होगा, हम दुआएं आपको देंगे। उसने कुछ सोचा, औरत ने कहा कि ठीक है आइए बैठिए मेरे यहाँ। उस औरत ने बैठाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि क्या बताए, मेरे साथ बहुत बुरा दिन चल रहा है, 6 दिन की तलाश में हम निकले हैं। एक आदमी ने हमको बताया है कि बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जाओ, तो बुखारी शाह बाबा से जाके मिलो। बुखारी शाह बाबा तुमको तुम्हारी ज़िंदगी का फलसफा बता देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी का राज खोल देगा, तुमको कामयाबी और कामरानी का समझेंगे। बाकी मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, वो जो कहेंगे उन्हीं के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमको कामयाबी मिल जाएगी। कहा अच्छा बुखारी शाह बाबा के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर दोगे? कहा क्या काम है? कहा बेटा काम तुम कर दोगे तब ना। कहा कि बताइए तो सही। कहा कि बेटा मामला यह है कि मेरे पास एक बेटी है, मेरे पास एक बेटी है, मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, तुमको दिखा दूंगा अगर तुम चाहो। कहा नहीं मैं देखना नहीं चाहता। कहा वो पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन अब 20 साल की उसकी उम्र भी हो गई है, लेकिन एक मसला है उसके साथ। कहा क्या है? कहा वो आज तक जिंदगी में कभी बोलती नहीं है, उसकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकलती, वो मेरी बेटी बोलती नहीं है। जाके मखदूम से उस बुखारी बाबा से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलने लगी, मेरी बेटी कब बोलने लगी। कहा ठीक है। उसने एक पॉइंट लिखा और उसका नाम लिखा औरत का और कहा कि ठीक है इंशाअल्लाह हम वहां पहुंचेंगे तो आपके बारे में हजरत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह से आपके बारे में पूछ लेंगे। चला बेचारा। अब चलते 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 फिर दिन भर उसने सफर किया। जब शाम हो रही थी तो उसको एक नदी मिल गई रास्ते में। अब नदी में लंबा नदी का दायरा था, उसको पार कैसे करना था, कोई कश्ती भी नहीं थी। तो एक बड़ा सा कछुआ वहां पर आकर के पानी के अंदर तैर रहा था। उस शख्स ने कहा भाई कछुआ साइड में रहा। उसने कछुआ को बुलाया और कहा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझको उधर पार कर दो। कहा कि ठीक है पार तो कर देंगे, लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहा कि हम जा रहे हैं वहाँ बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जा रहे हैं। कहा ठीक है, तो वहाँ जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दोगे? अब आपका क्या काम है बोलिए। कहा कि ये बताइए कि मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ। अल्लाह तआला से उनसे जाके पूछेगा कि अल्लाह हमको हयाते जावेदानी कब देगा, यानी हम हमेशा जिंदगी में कछुआ ही बन के रहेंगे या मेरा कुछ दिन भी बदलेगा और अच्छे दिन भी मेरे आएंगे, तो मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? कि बस मैं इसी में रहता हूँ, यहीं पे खाता हूँ, यही मेरी जिंदगी है, तो मेरे अच्छे दिन भी आएंगे कि मैं यहाँ से समुद्र में चला जाऊँ और बड़े बड़े समुद्रों में जाके घूमूं टहलूं, मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मैं बस छोटा सा दायरा है मैं उसी में रहता हूँ। तो आप जाके बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा से पूछिएगा कि मेरे दिन कब पलटेंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसने दूसरा पॉइंट भी लिखा, वो आगे और बढ़ा और फिर नदी जब पार किया तो नदी पार करने के बाद चलते 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 फिर शाम हो गई। शाम हो गई तो देखा कि बर्फीला चट्टान है, पहाड़ बर्फ का पहाड़ है और पहाड़ इतना ऊंचाई है आप यूं समझिए कि हिमालय का ऊंचाई जैसा पहाड़ था। उसने कहा भाई बाबा आप तो यहाँ कितने दिन से हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 700 साल से यहाँ पे बैठा हुआ इबादत कर रहा हूँ। कितने साल से? 700 साल से मैं यहाँ पर इबादत कर रहा हूँ। तो कहा कि इबादत किस में कर रहे हैं? कि कहा बस मेरी इबादत का मकसद यह है कि अल्लाह हमको जल्द से जल्द जन्नत अता फरमा दे, मेरी जन्नत अता फरमा दे। उस बाबा के पास एक छड़ी भी थी। तो कहा बाबा ठीक है आप इबादत करें तो आपको अल्लाह तो पता है 700 साल की जिंदगी दे दी, यही आपके लिए बहुत बड़ी है। क्या नहीं, मुझको जन्नत देखना है और मैं जन्नत में रहना चाहता हूँ। तो कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि बस मैं इसी पहाड़ी के पीछे सुनने में आया कि बुखारी रहमतुल्लाह बुखारी साहब बाबा रहते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि उनके पास जा रहे हो? अरे उनके पास जा रहे हो तो तुम मेरा मसला भी हल कर क्या आओगे? कहा आपका क्या मसला है? कहा कि मेरा मसला यह है कि बुखारी शाह बाबा से पूछना कि अल्लाह तआला हमको जन्नत कब अता फरमाएगा, अल्लाह तआला मुझको जन्नत कब अता फरमाएगा। कहा कि ठीक है लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। कहा क्या काम करना है? कहा कि मुझको इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर कैसे पार करना है? कहा ये तो मेरे पास जादू की छड़ी है, ये मेरे पास जादू की छड़ी, अभी मैं घुमाऊंगा तुमको उस पार कर दूंगा। कहा ठीक है मैं रात भर आपका मेहमान रहना चाहता हूँ। बाबा ने उसको रात भर अपने पास रखा। जब सुबह हुई तो उसको छड़ी घुमाया, छड़ी से उड़ा करके उस पार कर दिया। बाबा को कितना पावर था, उनके पास छड़ी कितनी ताकतवर थी कि छड़ी से घुमा के इस पार से उस पार कर दिया, जिसमें उनको चलते चलते वो शख्स मर भी सकता था,
लेकिन जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उसको उस पार कर दिया। जब उस पार हो गया तो सड़सड़ा के उधर गया तो देखा कि उधर तो मजमे आम लगा हुआ है और वहां पर जो है शम्मा जल रही है और परवाने इर्द गिर्द उसके बैठे हुए हैं। हजरत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार सजा हुआ है और जितने जरूरतमंद हैं अपनी अपनी जरूरत लेकर के उनके पास जा रहे हैं और लोग जरूरत लेके जा रहे हैं, सवाल लेकर के जा रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, हजरत बुखारी शाह बाबा के दरबार में जाने वाला जो मुसाफिर था उसका मिशन क्या था, सफर का मकसद क्या था? सफर का उसके मकसद ये था कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में हजरत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह से पूछूंगा कि मेरा दिन कब पलटेगा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे और मुझको अल्लाह ताला कामयाबी कामयाबी कब देगा। न मेरी शादी हुई है, न मेरे पास रहने के लिए घर है, न धन है, न दौलत है, ये सारी चीजें मेरे पास कब आएंगी? ये एक सवाल लेकर के उन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए जा रहा था बुखारी शाह बाबा के पास, है ना। वहां गया तो नंबर में लग गया। जब उसकी बारी आई तो सबसे ऐलान कर दिया गया कि हर इंसान को सिर्फ 3 सवाल पूछना है, हर इंसान को सिर्फ 3 सवाल पूछना है, चौथा सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं, चौथा नहीं। और ये शख्स ने जब अपना लिस्ट देखा तो 3 सवाल तो दूसरों का था, 3 सवाल तो दूसरे का था। लड़की कब बोलने लगेगी, कछुआ ने कहा कि हमको समुंदर वाली जिंदगी कब मिलेगी, बाबा ने कहा कि मुझको जन्नत कब मिलेगा। तो 3 सवाल था और चौथा सवाल क्या था, अपना था, अपने बारे में पूछना। वो वहां गया, जब लाइन में लगा हुआ है तो आप सोचिए आप उस इंसान की बेबसी। कभी सोचता था कि नहीं औरत वाला मामला बंद कर देंगे, अपने बारे में पूछेंगे, कछुआ के बारे में पूछेंगे, बाबा के बारे में पूछेंगे। फिर कहे कि नहीं बेचारी ने खाना खिलाया था, रात भर रोका था और बड़ी मजलूम औरत, नहीं उसका सवाल पूछेंगे और ये बाबा का सवाल छोड़ देंगे, सारे मामला कैसे। लेकिन अपना मामला जो है वो जोड़ता जा रहा था, बार बार जोड़ रहा था अपना मामला। अपना मामला जोड़ेगा तो किसी एक का जवाब तो छूट जाता ना। वो करते 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 सारे नंबर करते करते उसका नंबर आ गया। जब उसका नंबर आ गया तो उसने कहा कि नहीं, मुझको तीनों का, जितना 3 लोग रास्ते में मिले थे, छोड़ो मेरा मामला। अरे हम तो किसी तरह से एक रोटी खा करके जिंदगी गुजार लेंगे, हमारी तो गुजारा हो रहा है। लेकिन हर इंसान अपनी अपनी जगह पे तबाह बर्बाद है। कोई 700 साल से इबादत कर रहा है, कोई 500 साल से कछुआ की जिंदगी गुजार रहा है और बेचारी की जवान लड़की गोंगी लेकर के वो भी इंतजार में बैठी हुई है। तो उसने कहा कुछ नहीं, अपना छोड़ो, दूसरे के बारे में सवाल करो, दूसरे के बारे में सवाल करो। वो अपने आप को भूल गया, बाबा के पास गया और कहा बाबा मैं तो अपना सवाल लेके आया था, लेकिन ये आपके यहाँ शर्त लगी हुई है 3 सवाल और मेरी जिंदगी में ये तीनों सवाल इतने अहम हैं कि मैं अपना सवाल भूल जाऊंगा, मैं उन गरीबों का सवाल नहीं भूल सकता हूँ। कहा आपको बोलो तुम्हारे 3 सवाल क्या हैं? कहा मैं जब आ रहा था तो पहली एक औरत मिली थी, उसने कहा था कि उसके पास एक बच्ची है। उसने कहा था कि पूछना बाबा बुखारी से कि मेरी बच्ची कब बोलने लगेगी, मेरी बच्ची कब बोलने लगेगी। हजरत बुखारी बाबा ने फरमाया कि उस औरत से जाकर के बोल दो कि जिस दिन तुम अपनी बेटी की शादी करोगे उसी दिन तुम्हारी बच्ची बोलने लगेगी। कहा कि ठीक है। दूसरा यह है कि कछुआ तुम्हारा दोस्त हो गया था, कछुआ ने तुमको पैरा करके अपने पीठ पर बैठा करके पार किया था। कछुआ से जाके बोलना कि तुम्हारे ऊपर जो खोपड़ा लगा हुआ है उस खोपड़े से निकल जाओ, उस खोपड़ा को छोड़ दो और खोपड़े से जिन दिन तुम बाहर निकलोगे तुम समुद्र की जिंदगी गुजारोगे। कहा ठीक है। कहा तीसरा तो बहुत बड़ा सवाल है। 700 साल से अल्लाह का बंदा इबादत में मुस्तक़बिल बैठा हुआ है, इतना पावरफुल है, उसके पास एक छड़ी है, इतनी ताकतवर छड़ी है। तो उसने एक छड़ी का इशारा किया और उसको इस पार से उस पार कर दिया, लेकिन खुद इस पार से उस पार नहीं हो रहा है। कहा उसका सवाल क्या है? कहा उस बाबा ने सवाल किया है कि जाके पूछना आपसे सवाल है। तो उसने पूछा है कि मुझको अल्लाह ताला जन्नत कब अता फरमाएगा। तो कहा जाके बाबा से बोल देना कि जिस दिन वो अपनी छड़ी को फेंक देगा उस दिन वो जन्नती हो जाएगा। अब वो शख्स वहां से चला तो पहले किससे मुलाकात हुई? बाबा से मुलाकात हुई। बाबा पहाड़ी पर पार करा थे और बाबा जो है पहाड़ी पार करके इधर आ गए थे। कहा पहले बता मेरे सवाल का जवाब क्या है? कहा कि पहले आप हमको उस पार लगाइए, पहले आप मुझको उस पार लगाइए, कहीं बोल दिया आप भाग गए तो हम इसी पार फंस जाएंगे। तो कहा क्या ठीक है।
कहा कि चलो उस पार चलते हैं। कहा उस पार बाबा ने छड़ी घुमाया, उठते हुए बाबा चले आए इस पार। कहा मेरा सवाल का जवाब बोल। मेरा पूछा कि नहीं? कहा पूछा। अपना तो भूल गए, हम आप ही लोगों का पूछ करके आए, अपना तो कोई सवाल ही नहीं। कहा ठीक है, बोल जवाब क्या मिला है? कहा हजरत बुखारी रहमतुल्लाह बुखारी बाबा ने फरमाया है, बुखारी बाबा ने फरमाया है कि जिस दिन वो बाबा अपनी छड़ी फेंक देगा उस दिन वो जन्नती हो जाएगा। कहा इतनी सी बात थी, ले ये छड़ी हम फेंकते हैं, किसको दे देते हैं? ले जाइए, छड़ी पावरफुल है। तो बाबा ने वो छड़ी उनको दे दी और अल्लाह ताला ने उनको हयात जवानी जावेदानी दी। रूह उसी वक्त उनकी से परवास की गई और वो उसी वक्त जन्नती हो गए। जन्नती इसको क्या मिल गया? जादू की छड़ी मिल गई, पावरफुल ताकत उसके पास आ गई। पहली चीज उसको मिल गई। उसके बाद फिर यहाँ आया, आने के बाद कछुआ भी बेचारा इंतजार में था। कछुआ ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे बारे में पूछे होंगे, खाली जा करके पूरा खानका में जा करके और वहां से लीची या इलायची लेकर के चले आए। मेरे बारे में भी 20 साल से कुछ पूछे थे, कैसे चले आए? कहा आपके बारे में पूछा है। क्या जवाब मिला? का जवाब ये मिला है कि बाबा ने कहा है कि कछुआ से कहो कि अपने ऊपर जो खोपड़ा रखे हुए हैं उस खोपड़ा से निकल जाए। जिस दिन खोपड़ा से बाहर निकल जाएगा उस दिन वो आजाद हो जाएगा, समंदर की जिंदगी उतारेगा। कहा कि लो भाई इसमें टाइम क्या लगता है, अभी मैं निकल जाता हूँ। उसने अपने आप के बदन को समेटा और खोपड़ा से जैसे बाहर निकला तो उसके खोपड़े में खाली सच्ची मोती भरी हुई थी, हीरे जवाहरात भरे। वो हीरे जवाहरात उसकी खोपड़ी में भरे पड़े, उसके पूरे नदी और समुद्र का जवाहर उसके खोपड़ी में पड़ा हुआ था। उसने कहा ये मोती, ये हीरा, ये जवाहर मेरे किस काम का? मैं तो कछुआ हूँ, ले जा, कपड़े में लपेट ले, ये सारा जवाहर तेरा है, ये सारा जवाहर तेरा है। मुझको तो आजादी मिल गई, मैं चला समुद्र की ओर। वो कछुआ समुद्र की ओर चला गया, जादू की छड़ी मिल गई और मोती और जरो जवाहिर के हीरे और जवाहरात भी उसको मिल गए। उसने समेटा और चला फिर आगे, और चलते चलते जब रात हो गई तो उसी घर के करीब आया तो उसने दस्तक दी तो औरत बहुत खुश हुई कि आज तो मेरा जवाब लेकर के आया होगा। शाम हो रही थी, उसके दरवाजे को उसने दस्तक दी। कहा कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो पूछ के कि नहीं आए हो? कहा हम पूछ करके आए हैं। कहा क्या जवाब मिला है? कहा बाबा ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी बेटी की शादी कर दोगी उसी दिन तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। कहा कि ये जंगल है, उसी दिन बेटी बोलने का ये जंगल है। मेरी बेटी की उम्र 20 साल है, तुम्हारी उम्र 22 साल है। मुझको तेरे से अच्छा दामाद कहाँ मिल सकता है? तेरे से अच्छा मुझको दामाद कहाँ मिल सकता है? बस अभी मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर देती हूँ। और फौरन उस औरत ने उस मर्द की शादी अपनी बेटी के साथ कर दिया। और बेटी की जैसे ही शादी हुई, बेटी की जैसे ही शादी हुई, इस मर्द ने पूछा कि मुझको पहचानती हो? लड़की से पूछा मुझको पहचानती हो? तो कहा आप वही ना है जो पहले दिन मेरे यहाँ आए थे, रात में ठहरे थे, मेरे मेहमान है। लड़की बोलने लग गई, लड़की बोलने लग गई। अब सोचिए, वो इंसान जो अपनी जरूरत लेके चला था, इंसान अपनी जरूरत भूल गया, दूसरे के तमाम इंसानों की जरूरत अपने साथ लेकर के चला, तो अल्लाह ने उसको दौलत भी दे दी, अल्लाह ने उसको ताकत भी दे दी, अल्लाह ने उसकी शादी भी करा दी। मालूम ये हो कि इंसान अगर अपनी नफ्स से निकल जाए, अपनी ख्वाहिश से निकल जाए, अपने बारे में सोचना छोड़ दे, दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दे, तो खुदा उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। खुदा उसको बना देता है कि ये मेरे बंदों के बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। इंसान खानकाह से अगर कोई निजाम लेकर के जाना चाहते हो, अपने बारे में कम सोचो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश करो। दूसरों की तकलीफ को अपनी